let's start the class. In the last class, we were studying various components of salary. Okay, so various components of salary. In various components of salary, I told you that there are four major components under which we study salary. The first one is the base pay. The second one is allowances. Third one is the incentive and benefits. Benefits, And fourth one is rewards and recognition. the fourth one is rewards and recognition. पहला जो हमने बेस पे किया, जो बेस पे कंपोनेंट का, I explained it to you that it is the financial part of the salary which you get before any deductions or any increases. यानी जब आपके सैलरी में किसी तरीके की कोई डिडक्शन की बात नहीं होती है, जैसे पीएफ वगैरह कटने वटने की कोई बात नहीं है, तो जो सैलरी आपको मिलती है उसको कहते हैं बेसिक पे. ठीक है, एंड ये आपकी किसी भी टाइप की इंक्रीज के पहले मिलती है, यानी कि आप इंक्रीमेंट वगैरह की बात नहीं करेंगे इसके बारे में. दिस इज द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ सैलरी व्हिच यू गेट, एंड दिस इज जनरली 40 to 50% ऑफ द टोटल सीटीसी. ये भी लिखवाए थे Yes, ma'am. आप लोग कहाँ तक लिखे हैं? Allowances लिखवा दिए थे. अलाउंसेस का टाइप्स लिखवाए थे. Yes, ma'am. HRSCC है यही सब. हाँ, लेकिन टाइप्स उसका डिस्क्रिप्शन लिखवाए थे क्या? ये सब बस लिखवाई थी, इसके आगे नहीं. ओके, देन राइट डाउन. लास्ट क्लास में अलाउंस को डिस्कस किए हैं हम लोग. लास्ट क्लास में भी डिस्कस्ड अलाउंसेस ना, कि जो सैलरी, जो अलाउंस उसको कहते हैं. इट इज आल्सो, अलाउंस इज आल्सो द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ योर सैलरी. मैम थोड़ा जोर से बोलिएगा. देखो, अलाउंस किसको कहते हैं? अलाउंस इज आल्सो द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ सैलरी व्हिच इज गिवन टू यू ओवर एंड अबव द सैलरी. ठीक है, एंड दिस इज अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है ओवर एंड अबव द सैलरी. जो अलाउंसेस होता है वो आपकी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है. ये बता दिए थे. Yes, ma'am. बेसिक सैलरी पे बाकी का अलाउंस कैलकुलेट होता है. ठीक है, अब there are various types of allowances. Name some. Last class में भी बताएंगे. कुछ allowances के नाम बताइए. Transport allowance, leave travel, periodicals allowance, HRA Good. मैम, HRSCC. न्यूज़पेपर अलाउंसेस. Okay. Now you write down few types of allowances जो common है. ये सारे हैं और बहुत सारे allowance होते हैं depending upon the organization और जो designation पे आप काम कर रहे हैं. ठीक है, अब आप लिखिए थोड़ा सा इसको ताकि आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड रहे. राइट डाउन. राइट डाउन. Allowances are over and above the basic pay. अलाउंसेस आर मैम. Over and above the basic pay. तो आई थी आप बेसिक पे. कहाँ तक लिखे हो? अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज लिख लिए आप लोग. यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. The various types of allowances are यस मैम. the various types of allowances are. Write down first. HRA, house rent allowance. ये भी है मैम. HR हॉल अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट नहीं अलाउंसेस. नहीं नहीं, HRA का डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं लिखवा. ओ नहीं लिखे हो ना. नो. Then write down HRA, house rent allowance. हाँ, HRA हाउस रेंट. Write down. A house rent allowance is that component of the salary
A house rent allowance is that component of the salary which is paid to employees Paid to, ma'am. For meeting the cost of paid to employees for meeting the cost of renting a home. Renting, rent करना हो, renting a home. It is different for different cities. It is different for different cities. Next, you write down conveyance allowance or oblique करके लिखो transport allowance. Conveyance allowance Conveyance allowance और transport allowance, ma'am. सेम होता है, ये दोनों सेम ही है. कन्वेंस मतलब माना जाना कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस. It is offered to employees. It is offered to employees to compensate for their travel expense to and from their residence conveyance allowance or transport allowance. It is offered to employees to compensate for their travel expense to and from their residence and workplace. To and from their residence and workplace. हाँ. Next is write down leave travel allowance. Write down next is leave travel allowance. देखो लीव ट्रैवल अलाउंस लिखने के पहले समझो लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है. एलटीसी का नाम सुना है. लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है. एलटीसी किसी ने सुना होगा दोनों में से किसी ने. सुना है. No, ma'am. See, leave travel allowance is that kind of allowance which is given to employees. This leave is given to employees to travel. ठीक है, इसके नाम से क्लियर है कि leave travel allowance क्या होता है. This leave is given to employees to travel and the allowance paid for it is known as leave travel allowance. समझ में आई बात. यानी देखिए गवर्नमेंट ने साल में 2 बार इस चीज का प्रोविजन बनाया कि साल में 2 बार जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के वो अपनी फैमिलीज के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे, लीव पे जाएंगे. 10-12-15 दिन की लीव मिलती है उनको और फिर वो लीव पे जाएंगे. उसके लिए जो अलाउंस गवर्नमेंट पे करती है उसको क्या कहते हैं. लीव ट्रैवल अलाउंस. ठीक है, उसके लिए जो गवर्नमेंट पे करती है उसको कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस. अब देखिए जब हम ये एलटीसी या एलटीए को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, जब इस तरीके के लीव का इस तरीके के अलाउंस का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है तो हम देखते हैं कि हम इसको
तीन एस्पेक्ट से देख सकते हैं, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के और गवर्नमेंट के, ठीक है, फ्रॉम द व्यूज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। Okay. When you talk about it being from the perspective of an employee, तो आप क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्या देखेंगे, क्या फायदा होगा इसका, बताइए, आप सोच के बताइए कि अगर छुट्टी पे जाने के लिए 4 साल में 2 बार ये गवर्नमेंट देती है कि आप जा सकते हैं, उसके लिए हम अलाउंस देंगे आपको, तो इस चीज का पर्सपेक्टिव, व्हाट वुड बी द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर दिस, क्या सोच सकता है? क्या मैं फिर से बोलिएगा, मतलब नहीं समझे मैं। इस बात का एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव बताओ, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ। मैम एम्प्लॉय के पोस्ट घूमने का मकसद से ना, तो मैम एम्प्लॉय मैम लीव लेकर घूमने का मकसद से ही जाएगा मैम उस जगह पे जहाँ उसको हाँ। घूमने का है। जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि एम्प्लॉय के लिए ये अलाउंस क्यों जरूरी है? मैम इसलिए जरूरी है कि अपना माइंड फ्रेश रखने के लिए, और बिजनेस ट्रिप पे भी जा सकता है मैम वो, चाहे मैम कंपनी का मीटिंग के मकसद से भी जा सकता है। नो, दिस इज फॉर जस्ट फैमिली। और ये बहुत देखो सही फैमिली के बोला लिए, तुमको, ये तुमने बहुत सही बोला कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही काम को रोज रोज करते करते कोई भी, किसी को भी साइकोलॉजिकल फटीग होता है ना, थक जाता है, Yes, ma'am. मोनोटोनी होता है। तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट ये पर्सपेक्टिव बनाते, कौशल तुम म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना। तो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जब एम्प्लॉय काम करता है, वही काम रिपीट पे करते करते साइकोलॉजिकली थक जाता है, तो रिजुविनेट होने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव, ये एक अच्छा प्रोविजन सरकार ने लाया कि आपको एलटीसी देंगे हम, आप घूमने फिरने के लिए जाइए और उसके लिए हम आपको अलाउंस देंगे। अब आप ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कैसे देखा जा सकता है। आपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हाँ मैम घूमने जाएंगे तो वो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, अब एम्प्लॉयर के लिए भी ये अच्छा है, किस तरीके से बताओ? कोऑपरेट करेगा एम्प्लॉय के साथ, कोऑपरेशन होगा। एम्प्लॉय, फिर से बोलिएगा। तुमने ये बोला ना कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अच्छा है, ये अलाउंस इसलिए अच्छा है क्योंकि ही गेट्स टू गेट रिड ऑफ हिज साइकोलॉजिकल फटीग, है ना, वो बोर्डम से Yes, ma'am. छुटकारा मिलता है उसको। लेकिन Yes, ma'am. there's another perspective to it. Now you think as an employer and then you think that why giving this allowance is good for even you, तुमको एज एन एम्प्लॉयर भी ये फायदा करेगा, कैसे? मैम ये इसलिए बेनिफिट होगा कि जैसे मैम घूमने जाते हैं मैम, माइंड तो फ्रेश होगा ही होगा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि घूमने का मकसद से जा सकते हैं, फैमिली के साथ ऐसे बिजनेस मीटिंग्स भी होती है तो उसमें भी जाया जाता है बाहर में। वो लीव ट्रैवल, तुमको टीए का ट्रैवल अलाउंस अलग मिलता है। देखिए जितनी छुट्टियां साल में एक्यूमुलेट हो जाए, कौशल म्यूट योरसेल्फ, आवाज नहीं आएगी बाकियों को। हाँ, बाकी छुट्टियां जो बच जाती है साल में, यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म लीव एनकैशमेंट? लीव एनकैशमेंट के बारे में सुना है? जब एम्प्लॉय की बहुत सारी छुट्टियां बच जाती है ना, तो एक लिमिट तक उन छुट्टियों को फिर वो एनकैश करा सकता है। यू कैन गेट मनी इंस्टेड ऑफ दैट दोज लीव्स, मतलब साल भर लीव नहीं लिया और फिर उसको लास्ट में एनकैश करा लिया। तो मैम वो तो अगर खत्म भी हो सकता है। वो खत्म होता है, लेकिन जब तक वैलिडिटी है तब तक तो करवा सकता है ना। हाँ। लेकिन अगर वो घूमने के लिए जाएगा तो वो उतने दिन का लीव लेगा कि नहीं लेगा? अब घूमने के लिए जाएगा तो कम से कम 10-12 दिन चाहिए उसको फैमिली के साथ, तो 10-12 दिन का लीव भी बचता है ना। तो दैट वे एम्प्लॉयर सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम लीव एनकैशमेंट थिंग। समझ में आई बात? Yes, ma'am. और आप सोचिए, ये गवर्नमेंट अगर ये स्कीम लाई है तो गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट समथिंग गुड अबाउट इट। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचिए और बताइए कि क्या इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है। टेक योर टाइम and just think about it.
मैम एक बार और लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में आपने एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव को बताया, फिर आपने एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव को बताया। मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से ये अलाउंस क्यों अच्छा है। नाउ यू टेल मी कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये क्यों अच्छा है। व्हाट गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट ऑफ टू make it beneficial for the organization. Why is this implementation? गवर्नमेंट क्या सोची, गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है इससे। देखिए, सैलरीड एम्प्लॉय जब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं घूमने जाता है तो वो वहां पे भी तो खर्च करता है ना, Yes. खर्च करता है। अब अगर आप आगरा जा रहे हैं तो यू विल गो टू ताजमहल, यू विल गो टू फतेहपुर सिकरी, इफ यू and especially when you go to odd locations in India, like if you go to northeast, you're traveling northeast, or you want to go to Andaman Nicobar, Lakshadweep with your family members, Kashmir. So you, in a way, you are also doing revenue generation for tourism department. Yes. Yes, ma'am. यस मैम। तो इसीलिए ये तीनों पर्सपेक्टिव से इसको ये अलाउंस या ये जो प्रोविजन गवर्नमेंट लाई ये अच्छा है। ये एम्प्लॉय के लिए भी एक साइकोलॉजिकल फटीग हटाने का काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉय को भी वो लीव एनकैशमेंट से बचाता है, एंड देन इट प्रमोट्स टूरिज्म आल्सो। ओके, राइट डाउन, नाउ यू राइट डाउन, अब समझ में आएगा। लीव ट्रैवल अलाउंस इज ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स Leave travel allowance is offered by employers to their employees to cover their expenses मैम क्या रिपीटेड मैम? Leave travel allowance is offered by employers, which is offered by employers to their employees to cover their expenses when the employee is on leave. When the employee is on leave from work, is on leave from work. It covers only the domestic travels and the mode of travel be and the mode of travel be air, rail, मैम क्या बोल ट्रैवल के बाद? and the mode of travel be air, विल एल air, A-I-R, air, rail, R-A-I-L, rail, or public transport. Okay, now understand one thing कि नेक्स्ट जो हम लोग, ये समझ में आ गया लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है। यस मैम। यस मैम। One minute. Okay. Now write down medical allowance. Write down medical allowance.
It is an allowance paid to the employees of an organization It is an allowance paid to the employees of an organization to meet their medical expenditure. To meet their medical expenditure, comma, irrespective of whether they submit the bills, irrespective of whether, irrespective of whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not. Repeat, ma'am. Okay. Medical allowance is allowance paid to the employees of an organization to meet their medical expenditure, irrespective of whether they submit the bills, irrespective of whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not. To substantiate the expenditure or not. On the other hand, medical reimbursement medical reimbursement but in medical reimbursement, the payment is made to the employees Payment by employees, ma'am. payment is made to the employees made to the employees employees against specific medical bills against specific medical bills submitted by them. Submitted by them, subject to entitlement. Subject to Entitlement. अभी हम समझा देते हैं, देखो पहले. Subject to entitlement. ENTITLENENT. Okay. Written. yes. Now you understand the difference between medical allowance and medical reimbursement. Okay. देखो, मेडिकल अलाउंस में क्या होता है कि जैसे एचआरए दिया जाता है सैलरी के साथ, सैलरी के का एक पार्ट होके, वैसे ही मेडिकल अलाउंस में भी एक सैलरी का पार्ट की तरीके से पैसा पर मंथ सैलरी में ऐड किया जाता है, जैसे कि 3500 या 4000 ऐसे करके मेडिकल अलाउंस मिलता है. इसमें आपको कोई बिल नहीं दिखाना है. ठीक है, इसमें आपको कोई बिल फर्निश नहीं करना है, कोई हॉस्पिटल का बिल नहीं, कोई ओपीडी का बिल नहीं.
आप बीमार पड़े या ना पड़े, कंपनी ये मानती है कि आपके मेडिकल बिल्स की मेडिकल जो रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इतना अलाउंस दिया जाना चाहिए, ठीक है। So then you have, so for that you have medical allowance in your salary. लेकिन when we talk about medical reimbursement, reimbursement is a different thing. For reimbursement, the most important eligibility criteria is that you should be entitled to medical reimbursement. Like every person in the organization is not entitled for medical reimbursement. Okay. So, but if you are, then you will have to furnish the bills of hospital and doctors in order to claim this medical reimbursement. उसके बाद आपका जितना जो खर्च हुआ वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, कंपनी वो आपको सैंक्शन कर देती है। समझ में आई दोनों में डिफरेंस? Yes, ma'am. Now write one more thing. The various other types of allowance depend upon organization to organization. Depend upon organization to organization and are variable. And are variable. It includes uniform allowance. लिख लियो ना यहाँ पर? Yes, ma'am. It includes uniform allowance, meal allowance, overtime allowance, entertainment allowance, foreign allowance, write down foreign allowance, hill allowance, Foreign allowance के बाद hill allowance, hill, H-I-L-L, hill allowance, education allowance, etc. Right, etc. Etc. ठीक है? अब देखो, with this we complete allowances. ठीक है? इसके साथ हम लोग allowance complete किए। हो गया? Now we will, अब किसी को कोई डाउट है तुम दोनों में से किसी को? No, ma'am. No, ma'am. समझ में आया ना कि अलाउंस डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन और ये वेरिएबल होता है, ठीक है? कुछ Yes, ma'am. ये अलाउंस Yes, ma'am. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में अलाउंस दिया जाता है और वो बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसेंटिव। आज के क्लास में लिखवाएंगे नहीं क्योंकि इंसेंटिव का सिर्फ ब्रीफ डेफिनेशन देंगे हम आपको, और बेनिफिट्स ये हम अगले क्लास में ठीक से शुरू करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए सुनो। कभी ऑफर लेटर देखा है किसी मार्केटिंग की कंपनी का जो सेल्स के लिए हायर करने आई हो? Have you seen it?
Tell me. नहीं, जब आप ऑफर लेटर देखेंगे कोई वैसी कंपनी का जो सेल्स के लिए लोग हायर करने आती हैं, तो आप देखेंगे कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैलरी को कैसे स्ट्रक्चर करती है, 60-40 वो मेंशन होगा ऑफर लेटर में। Yes, ma'am. 60-40, 70-30, उसके बाद 80-20, इस तरीके से वो लिख करके आती है। क्या होता है उसका मतलब? क्या मैम? आप जब किसी कंपनी का ऑफर लेटर देखेंगे, स्पेशली जो मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए लोगों को हायर करने आई है, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनके ऑफर लेटर में जो सैलरी दिया रहता है कि सैलरी कैसे मिलेगी, तो ये मेंशन किया रहता है 60-40 या 70-30 या 80-20, ऐसे स्प्लिट किया रहता है। इस स्प्लिट का क्या पैकेज के मतलब? अनुसार रहता है ना मैम? हाँ, लेकिन आप वही तो हम बोल रहे हैं कि तुम कभी कभी किसी कंपनी के ऑफर लेटर में कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? 80-20 का क्या मतलब हुआ अगर बोले कि तो? 80-20 मतलब 18 से 20 हजार तक पर मंथ हुआ है ना मैम? नहीं, 80-20 का मतलब होता है कि 80% सैलरी आपकी फिक्स रहेगी उसमें, और जो बाकी का 20% है, ठीक है, अलाउंसेस। उसके लिए आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब हम सबके Yes, साथ भी होगा मैम जॉब लगने के बाद? नहीं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा, हर कंपनी ऐसा नहीं करती है, पर जनरली जो टारगेट बेस्ड कंपनी होगी ना, जैसे कि इंश्योरेंस की, ठीक है, मैम बैंक में तो ऐसा टारगेट बेसिस रहता होगा मैम या नहीं? टारगेट अब तो रहता है बैंक में भी, क्योंकि वो सब जगह इंश्योरेंस लिंक कर दिया है और इंश्योरेंस सेल करने प्रेशर के लिए ऐसा लोग। नहीं ना रहता मैम? हम्म, उतना वर्कलोड प्रेशर नहीं ना रहता कि एकदम टारगेट अचीव करना ही है करना? होता है, काफी प्रेशर होता है, सेल्स वाले लोगों पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। किस में मैम? सेल्स वाले लोग जिनको सेल्स के लिए हायर किया जाता है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। मैम और सेल्स के जगह पे मतलब कोई और पोस्ट रहा है तो मैम उसमें प्रेशर नहीं ना रहता है? वर्क प्रेशर हर जगह रहता है, सेल्स वालों को बहुत ज्यादा रहता है, बस इतना समझ लो, क्योंकि उनको टारगेट अचीव करके कंपनी को देना होता है। तो अभी के टाइम पे कंपनीज लेयर करती है कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज को, कि आप यहाँ आइए, यहाँ इंसेंटिव बहुत हाई है। इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? जहाँ ये वर्ड इंसेंटिव आ जाए, वहाँ तुम ये समझ लो कि ये मैटर परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया। समझ हाँ में मैम आया? परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अलाउंस में हमें नहीं पढ़ा ना परफॉर्मेंस बेस्ड, नो मैम। लेकिन इंसेंटिव जहाँ भी पढ़ो, तो वहाँ समझ लो कि इंसेंटिव की जब बात हो रही है तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। इंसेंटिव का मतलब मैम होता है, इससे जैसे मैम मेरा कहने का मतलब है जैसे हम वर्क करते हैं और मैं तो टारगेट से ज्यादा अचीव कर ली तो मेरा इंसेंटिव तो एक्स्ट्रा बनेगा, मेरा हाँ प्रमोशन भी बढ़ता है मैम। हाँ, डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे, लेकिन इंसेंटिव बनेगा। वही तो बात होता है ना, इसीलिए एम्प्लॉयज को कि वो ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा अपना एफिशिएंसी पुट फॉरवर्ड करें, अपनी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ाएं, इसीलिए इंसेंटिव का प्रोविजन है, ताकि आप इंसेंटिव के लालच में और ज्यादा वर्क करेंगे और बेहतर हार्ड तरीके वर्क हो से जाएगा वर्क मैम वो। करेंगे। हाँ, आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यस। तो दिस वाज about incentive. We will continue with benefits in the next class. Okay. okay, ma'am.